welcoming you all back to another session of Must Read Current Affairs. The date of the day is 7th of January 2021, and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exams perspective. So let us begin this particular session of the day. And to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription. First, if you take an academy subscription, you get unlimited access to all the educators, their courses on the academy's platform. You also get at regular intervals live test and doubt clearing sessions which make sure कि आपको कोई भी gray area ना बचे during this preparation of yours or civil services examination. और लाइव टेस्ट ये इंश्योर करते हैं कि आपका रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट होता रहे. ऑल द क्लासेस ऑन अकेडमी आर लाइव व्हिच मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट ऑफ क्लास इज इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग. You can easily take an academy subscription by downloading an academy's learning app on a mobile phone. After this, you will be getting two options of the subscription. One would be the plus subscription and the second would be iconic subscription. Iconic subscription is a little bit on a higher range as it has some additional benefits like that of personal coach, maze, question answer writing practice and so on. If you take plus subscription, you will be getting multiple options for duration plan ranging from 1 month to up till 36 months. The recommended duration plan would be 1 year, which will cost you 49,500 rupees. You can avail extra 10% off by using my code NAMAN, NAMAN, and then the final price would reduce to 44,550 rupees. अगर आप आइकॉनिक चूज करते हैं तो उसमें भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप चूज कर सकते हैं. इट विल कॉस्ट यू 69,500 रुपीज. तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज इट हैज गॉट सम एडिशनल बेनिफिट्स व्हिच आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू. तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको आइकॉनिक में मिलते हैं. And you can again avail extra 10% off by using my code NAMAN, and then the final price would reduce to 62,550 rupees. By using my code, you not only get a discount of 10%, but also my personal guidance and mentorship that I provide over phone. Okay, so the first article of the day, आज हम देखते हैं कि हमारा first article क्या है. The first article of the day basically is on the India-Germany relations. So while I was going through the previous articles, तो मुझे ये पता चला कि हमने इंडिया और जर्मनी अभी तक डील नहीं किया है. Whereas मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया जर्मनी हम डील कर चुके हैं. So and I think I have in the previous sessions also asked you कि क्या हमने इंडिया जर्मनी डील किया है. तब किसी ने शायद इस पे क्वेश्चंस रेज नहीं करे. So fortunately, I have gone through the back notes and I found that I have not done the India-Germany relationship as of now. So today is the time that we will be doing India-Germany relationship in a comprehensive manner. तो यूरोपियन कंट्रीज में जो 3 मेजर कंट्रीज हैं, दैट इज फ्रांस, यूके और जर्मनी, ये तीनों कंट्रीज के साथ रिलेशन आपको इंडिया के पता होने चाहिए. बिकॉज इंडिया ईयू की जब आप बात करेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं. तो उसमें जब आप स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखेंगे तो आप एज एन एग्जांपल इंडिया जर्मनी में कुछ एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, इंडिया फ्रांस के कुछ एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, इंडिया यूके के एग्जांपल्स कुछ यूज कर सकते हैं. तो इंडिया यूके इंडिया फ्रांस हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं. एंड द थर्ड मेजर कंट्री विथ विच यू शुड बी having your notes on the bilateral relation is definitely Germany. So to begin with the India-Germany relations, you need to first understand that India was the first country, or you can say that India was one of the first country to establish the diplomatic relations with Germany after World War II. So India was one of the first country to have established its diplomatic relations with Germany after World War II. And the relationship between India and Germany during the Cold War era or during the Cold War time was not that significant, whether be it in terms of trade or commerce, strategic or defense ties. ये कभी भी significant नहीं रहा है because India was towards the non-alignment movement and Germany also was divided then into East Germany and West Germany. So both of the parts of the Germany were aligned to the different blocks of the world, that is the capitalistic bloc and the communist bloc. So we could not have enjoyed the good relationship between the countries during the Cold War era. When I say that the countries did not have good relationship, I am not saying here that the countries had an acrimonious relationship. No, the relationship was
not at all in existence, you can say, except in the few domains like science and technology, research and development and so on. तो बहुत ही mediocre level पे हमारा relationship run किया है throughout the Cold War phase. And we could have only boosted the relationship after the Cold War or after the 1990s, because यहाँ पे एक तो Cold War end हुआ and second unification of Germany also had taken place by the end of 1990s. तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण 1990s के बाद मेजर बूस्ट देखने को मिला है इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी. Both countries signed strategic partnership way back in 2001 itself. तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज ने 2001 में ही साइन कर ली थी. ये बहुत ही एक अर्ली कंक्लूजन था ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्हिच यू वोंट फाइंड विद द अदर सेट ऑफ कंट्रीज. Okay, there is also an intergovernmental consultation group which was constituted between India and Germany, which facilitates the consultation between head of the states of both these countries. तो डायरेक्ट कंसल्टेशन होती है बिटवीन द chancellor of Germany and the prime minister of our country through the intergovernmental consultation group which was constituted way back in the early 2000s itself. Apart from this, India and Germany के बीच में एक parliamentary friendship group भी है which has been operating since 1971. तो parliamentary level पे भी exchanges होते रहते हैं. Group of parliamentarians from India and from Germany, they exchange the ideas, policies with each other. Getting my point? Okay. The unique relationship between India and Germany also talks about the sister state relations. तो sister state relation एक unique feature है of India and Germany, wherein few of the states or cities of our country have established this kind of relationship with those of the German provinces, German states and German cities. So we are through the sister state relationship basically are trying to give push to the friendship or regional ties, जिसको आप पैरा डिप्लोमेसी भी बोलते हैं. सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप में आप कुछ मेजर पॉइंट्स जो मेंशन कर सकते हैं, दैट इज द कर्नाटका एंड बवेरिया प्रोविंस, जिसमें सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2007 में, तो कर्नाटका एंड बवेरिया है. द सेकंड इज मुंबई एंड स्टटगार्ट, जिसमें रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था 1968 में. और तीसरा है महाराष्ट्र एंड वर्टनबर्ग, which was a recent establishment or sister state relationship between the Indian federal provinces, Indian states, Indian cities with that of the German provinces, German states and German cities. तो ये रीजनल लेवल पे भी टाइज को स्ट्रेंथन करता है, टाइज को एक बूस्ट देने की कोशिश करता है. Okay, apart from this, India and Germany have had signed in 2006 defense cooperation agreement. लेकिन ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा जब मैं पूरे रिलेशनशिप को एनालाइज करूंगा आप लोगों के साथ. Germany is one of the biggest trading partner of India, and if I talk about the European countries, then you must remember this particular fact that among all the European Union countries, Germany is the country with which we have the highest trade share. तो सबसे ज्यादा ट्रेड हम जर्मनी के साथ करते हैं among all the European countries, and the trade as of now is around $24 billion. तो आपको इंडिया, फ्रांस, इंडिया, यूके के ट्रेड के भी आइडिया है. दे आर नियर अराउंड 15-16 बिलियन डॉलर्स, एंड यू कैन सी विद जर्मनी वी हैव ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड which as of now is hovering around $24 billion. India also has set up the fast track system for the Germany companies so that fast approval can be given for the investment and establishment of Germany companies into India, and the vice versa has been done by the Germany also
इन 2019। तो एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म जर्मनी ने भी इंडियन कंपनीज के लिए अब स्टार्ट कर दिया है सिंस 2019 ऑनवर्ड्स। सो नाउ फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स इंडियन कंपनीज कैन आल्सो इन अ फास्टर मैनर set up their plants and companies in the Germany. There is also one unique initiative called as MIIM. It stands for Make in India Mittelsland. Mittelsland. Mittelsland stands for medium-sized companies. It is a German word. It stands for medium-sized companies. तो हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को collaborate करा है with Germany so that middle-sized companies of Germany under the MIIM can come into India, and through them we can have the best technology skills and develop our own skill set and expertise. तो ये एक और यूनिक इनिशिएटिव है जो हम इंडिया और जर्मनी के बीच में प्लान कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। इसके अलावा साइंस एंड टेक कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द कंट्रीज। जैसे मैंने बताया कोल्ड वॉर के टाइम से हम साइंस एंड टेक में भी डील कर रहे हैं। तो साइंस एंड टेक के रिगार्ड्स में इंडिया जर्मन का साइंस एंड टेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 1971 में। ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस पे फोकस रखिए कि कौन से एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस हैं बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। तो ये कुछ मेजर की पॉइंट्स हैं जो आप इंडिया जर्मनी के रिलेशनशिप में मिस नहीं कर सकते हैं अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑन इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। इसके अलावा आप R&D की भी बात कर सकते हैं दैट जर्मनी एंड इंडिया are the second largest, or you can say that for India, Germany is the second largest and biggest R&D partner only after USA. And Germany has done significant investments in the R&D sector in India as well. न्यू अर्बन डेवलपमेंट या ग्रीन अर्बन मोबिलिटी की अगर मैं बात करूं, दैट इज द सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, उसमें भी जर्मनी हमें काफी सपोर्ट करता आया है। एंड जर्मनी हैज allocated us the funds of around $1.1 billion last year or in 2019 जब जर्मनी के चांसलर इंडिया आए थे as a head of states visit. Now coming on to the diaspora, what kind of diaspora India has in Germany? तो अगर मैं diaspora की population की बात करूं तो India has near around 1.7 lakh Indian origin people in Germany. But the point out here is that you need to remember that unlike UK, unlike Canada, unlike USA, our diaspora here is not very much politically active. The diaspora mostly constitutes of professionals, businessmen who basically constitutes the upper echelons of the society of Germany but are not politically active as of now. As of now politically active ये नहीं है। Okay, India is also the second biggest contributor in terms of foreign doctoral students to Germany. So most number of students going to Germany basically come from India who are going there to pursue their PhD level studies only after China. तो ये यहाँ पे डायस्पोरा में आप बेसिक पॉइंट्स याद रख सकते हैं। Okay. Now let us summarize the relationship and talk about the areas of convergence. Areas of convergence की अगर मैं बात करूं तो कुछ points already हम discuss कर चुके हैं, उनको हम यहाँ पे conclude कर देंगे। कुछ points जो मैंने अभी तक आपके साथ discuss नहीं करे लेकिन important है, आपको पता होने चाहिए, वो आप areas of convergence में mention करेंगे। So the first area of convergence definitely would be G4. G4 is a group of four countries who basically are striving hard for the UN reforms and UNSC reforms. G4 में countries आती हैं इंडिया, जापान, ब्राजील एंड जर्मनी who basically are looking for UN and UNSC reforms. तो ये एक मेजर एरिया ऑफ कन्वर्जेंस बनता है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सेकेंड एरिया ऑफ कन्वर्जेंस इज क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के साथ ही आप दूसरा यहाँ पे मेंशन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। जर्मनी इज द लीडर इन दी सोलार रिन्यूएबल एनर्जी, तो वहां से हमें बहुत सारी एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी लेने को मिलती है, हमें ट्रांसफर करी जाती है फ्रॉम द जर्मनी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, R&D एंड
also the at the academic level, academic exchange programs के through. क्लाइमेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी हैज बिकम द पार्टनर ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस ने बेसिकली इनिशिएट किया था वे बैक इन 2015 ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, Paris Agreement Accord, and Germany is now also willing to become the partner of CDRI, that is Coalition on Disaster Resilient Infrastructure, जो अगेन एक इंडिया का इनिशिएटिव था ड्यूरिंग द क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ 2019. तो यहाँ पे कोलैबोरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है इंडिया और जर्मनी का इन बोथ द एरियाज क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी. Okay, apart from this, the next set of area of convergence definitely would be terrorism. Terrorism में both countries are an active participant and they are also the members of FATF. Apart from terrorism, you can here talk about definitely of science and tech and R&D, जहाँ पे we are the beneficiary and Germany is the originator and the supplier of expertise, technology, skill sets to the India. And last here you can talk about sustainable development or sustainable urban development to be precise. Sustainable urban development में आप बात कर सकते हैं about the 3 cities जहां पे जर्मनी इंडिया की हेल्प कर रही है to develop them as a smart city, and these 3 cities are Kochi, Coimbatore and Bhubaneswar. So these are the 3 cities wherein direct involvement is there of the Germany and its company, its entity called as GIS or GIZ, which is developing these cities to become the smart city using the cutting edge technologies, state of art technologies, and the best expertise that can be provided by including the impact of disaster as well on these cities. इसके अलावा आप यहाँ पे ई मोबिलिटी एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी की बात कर सकते हैं, जहां पे जर्मनी ने, मैंने आपको बताया कि 1.1 बिलियन डॉलर्स की असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, not only in the financial terms but also in the terms of technology, expertise and etc. Okay. क्या हमारे दोनों के बीच में, तो क्या है हम दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ इरिटेंट्स हैं? देन डेफिनेटली देयर आर फ्यू इरिटेंट्स एज वेल. द फर्स्ट इरिटेंट डेफिनेटली वुड बी India EU FTA, also called as BTIA agreement, which is being negotiated since 2007. तो 2007 से हम नेगोशिएट कर रहे हैं BTIA एग्रीमेंट और द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया EU, बट वी आर अनएबल टू कंक्लूड इट, and this becomes an irritant, a major irritant between India and Germany as well, because post Brexit Germany definitely is gonna assume the leadership position in the European Union. Erstwhile as well it was the leader of European Union, but its position will now be more affirmed once the UK has left EU formally. Second major irritant is Kashmir issue, because Germany is very much cautious and uh, often vociferates its concerns with respect to the Kashmir and India's tackling of the situation there. तो कश्मीर इशू भी मेजर एक इरिटेंट बनता रहता है इन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी रिलेशंस. कश्मीर के अलावा यहाँ पे चाइना आप तीसरा इरिटेंट मेंशन करेंगे, और यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे. एक, जर्मनी की विलिंगनेस टू ज्वाइन द BRI प्रोजेक्ट ऑफ चाइना, पॉइंट नंबर 1. एंड सेकेंड, हमने रिसेंटली देखा था कि चाइना एंड EU ने ट्रेड डील फाइनली कंक्लूड कर ली है, जो वो 7 साल से नेगोशिएट कर रहे थे. एंड द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस China EU trade deal would be 2 countries, those are France and Germany. तो यहाँ पे there is closeness between Germany and China, which definitely upsets us or upsets India.
तो ये कुछ मेजर इरिटेंट है। इसके अलावा एक और इरिटेंट है, फोर्थ इरिटेंट, लास्ट इरिटेंट, एंड दैट इज दी MLAT ट्रीटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जो बेसिकली एक्स्ट्राडिशन फैसिलिटेट करती है बिटवीन टू कंट्रीज। तो MLAT ट्रीटी जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, बिकॉज इंडिया हैज नॉट अबॉलिश्ड और अबैंडन द कैपिटल पनिशमेंट एज ऑफ नाउ। तो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कशन करा था पहले। यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट भी एक की इरिटेंट बनता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर अनएबल टू agree upon or converge on the key issues like those of the extradition treaty। तो ये चार मेजर इरिटेंट्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। Now when you have to conclude the India-Germany relationship, you first need to understand कि India-Germany relationship आपने अभी तक जितनी स्टडी करा, आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटेजिक टाइज, डिफेंस टाइज हमारे बीच में नहीं है उस लेवल के जैसे हमारे इंडिया फ्रांस के बीच में है, इंडिया यूएस के बीच में है, इंडिया जापान के बीच में, इनफैक्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी इससे ज्यादा स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एंगेजमेंट्स हैं। But with Germany, we have purely trade and commerce relationship, and we are more oriented in towards the science and tech and R&D। तो ये क्रक्स है जो आपको यहाँ से पिक करना है। ऑन वे फॉरवर्ड में you get one important point from here itself, that the time has now come for India and Germany to expand the ambit of the strategic partnership now towards the defense and strategic ties। तो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज यहाँ पे जो अभी तक यू कैन से अनअटेंडेड रहा है बिटवीन द कंट्रीज, वो हम पिक कर सकते हैं बिटवीन द कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डेफिनेटली टॉक हियर अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्पेस। ये कुछ फैक्टर्स सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया एंड जर्मनी कैन इजीली एंगेज विद ईच अदर and elevate the ties that they as of now are enjoying with each other। So this was about India and Germany relations। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट आर्टिकल को पिक करेंगे। तो बहुत ही इजी है इंडिया जर्मनी का रिलेशन। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रक्स पे आपको फोकस करना है। क्रक्स ये है कि स्ट्रेटेजिक टाइज, डिफेंस टाइज हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी, एंड वी आर मोर फोकस्ड एंड मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टिल नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स, R&D एंड साइंस एंड टेक। ओके, मैं कल्चर के बारे में यहाँ से बात करना भूल गया कि व्हाट आर द कल्चरल टाइज। सो कल्चरल टाइज आर इंपॉर्टेंट बिटवीन द कंट्रीज हियर। कल्चरल टाइज में आप कुछ पॉइंट्स जो मेंशन कर सकते हैं, दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू मैक्स मुलर। So Max Muller was the person of the or a German who basically translated the Indo-European languages into Indo-European languages, the Upanishads and Rig Veda of India। Apart from this, India में Max Muller भवन भी constituted है across multiple cities, जहाँ पे हम गोथिक इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं। तो ये भी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, एंड इसके थ्रू यहाँ पे आप बेसिकली कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चेयर ऑफ इंडोलॉजी है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इन जर्मनी सिंस 1818। तो कल्चरल टाइज में आप ये कुछ पॉइंट्स, ये 3-4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इट। तो इंडिया जर्मनी रिलेशन का अगर मैं आपको क्रक्स एक बार सिंप्लीफाई करूं, सो दैट वुड बी, आपको फोकस रखना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। कोल्ड वॉर एरा में कैसे टाइज थे आपको याद रहना चाहिए, दैट दे वर कॉर्डियल नॉट वेरी डीप लाइक द यूके के साथ तो खैर अभी तक हमारा वही सिचुएशन है, दैट द टाइज आर कॉर्डियल बट नॉट वेरी डीप। तो जर्मनी के साथ टिल द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर और टिल द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, टाइज वर कॉर्डियल बट नॉट वेरी डीप। After 1990s, the ties basically were boosted, especially in the sectors like trade and commerce, science and tech, and research and development. Germany is very useful for us and very supportive in the sustainable urban development, urban mobility, and the areas where it holds the expertise, water management, and so on.
तो जर्मनी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट जर्मनी क्लीन गंगा मिशन में और दी नमामि गंगे मिशन में भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बाय शेयरिंग इज एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजी। ओके, एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस में आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं कि एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस में आप क्या मेंशन करेंगे। ये 4-5 पॉइंट मैंडेटरी हैं, इसके अलावा ज्यादा यहाँ पे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। वे फॉरवर्ड में डेफिनेटली यू विल बी टॉकिंग अबाउट दी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक टाइज। और यहाँ पे जब डायस्पोरा आता है तो डायस्पोरा को आप ज्यादा लेवरेज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज politically inactive diaspora, unlike the diaspora that we have in the other Western countries like US, Canada, UK, etc., where the diaspora is politically active. तो उसको भी हम leverage कर सकते हैं, but that is not possible for us in the case of Germany. तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट आर्टिकल पिक करते हैं। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, हमने कुछ टाइम पहले आई थिंक 1 या 2 जनवरी को हमने डिस्कस करा था ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, दैट इज द लाइट हाउस प्रोजेक्ट विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड। उसमें भी हम टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज ले रहे हैं ऑफ सर्टेन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, यूएस एंड जर्मनी। तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी को चैलेंज को भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं कि हाउसिंग सेक्टर में कैसे जर्मनी हमको हेल्प कर रहा है। फाइन, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल हियर टॉक्स अबाउट द एजिंग, दैट इज अ स्टडी वाज कंडक्टेड इन इंडिया कॉल्ड एज लासी। लासी स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। तो इसकी रिपोर्ट रिलीज करी है। रिपोर्ट के फाइनल डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, तो जो भी हमारे पास रफ स्केच है वी विल use it to understand the problem of aging in India and the existing tools and mechanisms that we have to deal with the problem of aging in India. तो as of now 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 8.6% एल्डरली सिटीजन है, पॉइंट नंबर 1, which constitute to be around 100 million in the population terms. According to UN and also according to the LASI, this is expected to rise to around 300 million by 2050. According to UN, this will constitute around 20% of the India's population by 2050. तो 2050 में आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफी में लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। As of now, assets we have in the demography and so we call it a demographic dividend. लेकिन जब इसमें लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी सो वी नीड टू रीओरिएंट एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स सो एज टू सूट द डेमोग्राफी ऑफ आवर कंट्री आफ्टर 2 to 3 decades. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एजिंग एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग इन इंडिया बाय 2050। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स with respect to elderly कि क्यों ये liability is of a grave concern. So 75% of the elderly citizens in our country have one or the other chronic disease or chronic ailment, जिसके कारण they basically cannot be left alone. They need someone to take care of themselves or they need someone to take care of them. 40% of the elderly citizens in our country have one or the other form of disability. तो ये clearly show करता है mobility among the elderly section of our country and it tells us that there is the restricted or limited mobility. तो जो भी आपको services develop करनी है they should be taken into consideration after going through these facts कि 40% ऐसे एल्डरली सिटीजन्स हैं who suffer from one or the other form of disability, physical disabilities. तो वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस को। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू रीच टू देम rather expecting those citizens, elderly citizens, to go to the institutions, governmental institutions, to avail the services of programs that have been released
और डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा 20% ऑफ द एल्डरली सिटीजन इन आवर कंट्री हैव द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स एक तो ये बता रहे हैं आपको कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम ग्रेव है, कितनी केयर की रिक्वायरमेंट है एल्डरली सिटीजन्स को हमारे देश में। एक्सेसिबिलिटी की ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी इंडिया में कितनी ज्यादा ग्रेव है रिस्पेक्ट टू एल्डरली सिटीजन्स। एक और पॉइंट जो आप हमें मेंशन कर सकते हैं दैट मोर देन 90% ऑफ द डिसेबल्ड पीपल इन आवर कंट्री फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो 90% से ज्यादा डिसेबल्ड लोग हमारे देश में, उनके पास दे डू नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट मनी टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड्स। तो इससे आप कंक्लूड करिए कुछ चीजें दैट देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी, डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी because they have restricted mobility, and there is the problem of care in the sense that they are unable to take care of themselves and they need someone to look after them, so they are completely dependent। ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द एल्डरली सिटीजन्स इन आवर कंट्री। ओके, लास्टली इस तरीके की स्टडीज जो कंडक्ट होती हैं, लाइक दिस स्टडी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सच काइंड ऑफ अ सर्वे टू बी एवर टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप प्रेज भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे एफर्ट्स ले रही है। इस स्टडी के थ्रू गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाह रही है? तो इस स्टडी के थ्रू गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड और हैव अ डेटाबेस फॉर डिजाइनिंग पॉलिसीज। Using this database, government will design its policies. It is a good thing. The policy would be evidence based. Secondly, government wants to strengthen its existing tools, its existing programs like the National Program on Health Care of Elderly, NPHE program। तो इसको strengthen, इसके जैसे और भी जो programs हैं, schemes हैं, उसको हम strengthen करेंगे using this database। And we will be in a position to establish range of preventive health care programs। तो ये बेसिक आइडिया है behind this study, that is to have a database and then to come out with the evidence based recommendations, evidence based policy making, evidence based decision making in our country। Fine, एग्जिस्टिंग कुछ टूल्स, एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो मैं आपको बता दूं, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद द एल्डरली सिटीजन स्पेसिफिक पॉलिसी, एंड दैट वाज कॉल्ड एज एनपीओपी, दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, ए वे बैक इन 1999। तो इंडिया ने अपनी एल्डरली सिटीजन की पॉलिसी 1999 में ही पहली रिलीज कर दी थी। दिस वाज रिवाइज्ड इन 2011 as per the recommendations of the मोहिनी गिरी कमेटी। तो मोहिनी गिरी कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एल्डरली सिटीजन्स की बात करेंगे इंडियन रिस्पेक्ट में, तो आप मोहिनी गिरी कमेटी ये वर्ड जो है इसको आप ड्रॉप करेंगे, क्योंकि आज भी कई सारे ऐसे रिकमेंडेशन है मोहिनी गिरी कमेटी के जो इंप्लीमेंट होने चाहिए और गवर्नमेंट ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करे। ओके, तो 2011 में we basically changed or modified the previous policy of 1999, and then we came up with the national policy on senior citizens in 2011, national policy on senior citizens, NPOP को चेंज कर दिया NPSC में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने डेवलपमेंट्स करे, चेंजेस करे जो मोहिनी गिरी कमेटी ने भी बोले थे, लाइक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स को डेवलप किया जाए फॉर द डेडिकेटेड केयर विच इज रिक्वायर्ड for the citizens, elderly citizens in our country। Employment and income generation related livelihoods, especially to be looked after for the people who have attained the superannuation, क्योंकि 90% हमने देखा that they have the economic constraints, financial constraints, so we need to provide to them certain kind of livelihood opportunities which they are in a position to take up or pick after having these kind of ailments and
मोबिलिटी रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आपको कुछ ऐसे लाइवलीहुड इनके लिए अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है जिसके थ्रू ये अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके, मेडिकल एक्सपेंसेस को सस्टेन कर सके एक्सेट्रा, और ये डिपेंडेंट ना बने, बर्डन ना बने ऑन दी सोसाइटी और ऑन देयर फैमिलीज। फाइन। Then government told about the setting up of homes for the elderly citizens, which will be having assisted living facilities, assisted living standards. And lastly, government is now planning after 2011 to expand the old age pension scheme. Old age pension scheme को universalize करने की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। फाइन। इस पॉलिसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट ऑफ 2007। सो ये एक्ट बेसिकली ये बोलता है कि जो भी वार्ड्स हैं ऑफ सीनियर सिटीजंस, द चिल्ड्रन ऑफ सीनियर सिटीजंस शुड नॉट अबैंडन देयर पेरेंट्स once they have become a senior citizen or have crossed the age of 60 years in a country। तो एक तरीके से ये restriction impose करता है ताकि उनको care, the required care is given to these citizens। After this maintenance of welfare of parents and senior citizens act, you can talk about the United Nations Convention जिसमें इंडिया पार्टी है, United Nations Convention on Rights of Persons with Disability, UNC RPD, राइट्स ऑन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, उसमें भी एल्डरली सिटीजन्स आते हैं। और ये प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूं, नेशनल प्रोग्राम ऑन हेल्थ केयर फॉर एल्डरली सिटीजन्स। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग मेजर टूल्स हैं इंडिया के पास। इसके अलावा बजट के थ्रू हम प्रोविजंस, इंसेंटिवाइजेशंस अटेम्प्ट करते रहते हैं, लाइक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हैं, टैक्स रिबेट है, सो ऑन। तो वो सारी चीजें हम कभी और डिटेल में देख लेंगे। अभी के लिए जो आपके पास मेजर फैक्ट्स होने चाहिए, रफ फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो आपके पास है। जब भी आपको चैलेंजेस की बात करनी है कि एक एल्डरली सिटीजन कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करता है, तो उसका आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए डेफिनेटली। सो वन चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पे फैक्ट भी है कि 75%, 40%, 20%, ये सारे फैक्ट्स हेल्थ के रिस्पेक्ट में है। देन हेल्थ के अलावा आप मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे और साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करेंगे। साइकोलॉजिकल हेल्थ में दे बेसिकली फेस द प्रॉब्लम ऑफ isolation, they basically face the problem of loneliness because there is no one around them to take care of them, to talk to them, and there is now the increasing trend of nuclear families जहां पे elderly citizens को accommodate usually नहीं किया जा रहा है। तो उसके कारण elderly citizens बहुत ज्यादा helpless feel करते हैं, which leads to the psychological kind of problems among them। तो एक हो गई प्रॉब्लम हेल्थ की, दूसरी हो गई साइकोलॉजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम, तीसरी होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी मैं आपको बता चुका हूं कि दे आर नॉट इन अ पोजीशन फिजिकली एंड मेंटली और साइकोलॉजिकली टू गो आउट एंड वर्क फॉर द सस्टेनेंस ऑफ देयर ओन लाइफ्स। तो इसीलिए फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स वो फेस करते हैं। देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिबिलिटी विद देम बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है, वो ज्यादा लंबा टाइम तक जा नहीं सकते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस पुट अपॉन बाय देयर फिजिकल हेल्थ एंड सो ऑन। इसके अलावा आप सिक्योरिटी की बात करेंगे, दैट elderly citizens in our country are the one of the vulnerable sections, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, अगर कोई डिजास्टर आता है, so these are the people who basically are most vulnerable। और अगर मैं नॉर्मल क्राइम रेट की बात करूं, उसके रिस्पेक्ट में इनकी वल्नरेबिलिटी की बात करूं, सिक्योरिटी इशू की बात करूं, सो अगेन दे बिकम एन इजी विक्टिम। तो सिक्योरिटी इश्यूज भी ये बेसिकली फेस करते हैं। तो ये कुछ मेजर की एरियाज हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए और उसके अंडर में आपके पास कुछ सब्सटैंटिव पॉइंट्स होने चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बाकी जब हम एजिंग इन इंडिया एंड द प्रोस्पेक्ट्स बाय 2050 जैसे यूएन की रिपोर्ट है,
उसको कभी डिस्कस करेंगे तो हम उसको और फर्दर फिल करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ स्केच वर्क, फ्रेमवर्क, कि आप जब भी एजिंग की बात करें तो आपके पास एक रफ फ्रेमवर्क हो कि इंडिया के पास एग्जिस्टिंग टूल्स क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है, क्या फैक्ट्स है इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू एल्डरली। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस अभी कर चुका हूँ। ओके, लासी स्टडी को आप प्लीज अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज आई हैव सेड दैट दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट काइंड ऑफ अ सर्वे, दिस काइंड ऑफ अ सर्वे एवर टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। ओके, साइंस एंड टेक ड्राफ्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज करी, इसको हमने डिस्कस करा था। तो अगेन मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। ड्राफ्ट साइंस एंड टेक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ क्रक्स याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमने मल्टीपल यहाँ पे पॉइंट्स देखे थे जिसपे मैंने एम्फोसिस नहीं दिया था। मैंने एम्फोसिस कहाँ दिया था? एक, आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के अलावा आपको पुरानी टाइमलाइन याद रखनी है। टाइमलाइन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको ईयर याद होना चाहिए कि 1958 में एक पॉलिसी आई, फिर 1983 में आई, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं टाइमलाइन का क्रक्स याद रहना चाहिए कि अभी तक हम साइंस एंड टेक को कैसे परसीव करते आए हैं इन इंडिया, एंड नाउ हाउ आर वी गोना परसीव द न्यू साइंस एंड टेक इनोवेशन इन इंडिया थ्रू द ड्राफ्ट पॉलिसी। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एंड व्हाट चेंजेस, मेजर चेंजेस आर वी गोना अटेम्प्ट थ्रू दिस ड्राफ्ट साइंस एंड टेक पॉलिसी, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप एसेज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ की प्रोविजंस हैं जो अगर आपको याद रह गए तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, टारगेट्स की बात करूं, तो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि इंडिया के फंडिंग के रिस्पेक्ट में दो मेजर टारगेट्स हैं कि जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम द बजटरी प्रोविजन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एलोकेट करती है, वो गवर्नमेंट को डबल करना है इन एवरी 5 years। Government would be doubling the public expenditure every 5 years. Also, government would be incentivizing the private sector to double their investment as well in every 5 years. तो ये दो ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंसिंग फंडिंग के टर्म्स में हो गए। The next objective is to double the number of researchers in India, full-time equivalent researchers in India. फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स इन इंडिया को डबल करना है हमें। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंडिया वांट्स टू बिकम वन ऑफ द 3 साइंटिफिक पावर हाउस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो टॉप 3 साइंटिफिक पावर हाउस हमें बनना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। And the next objective is we want to achieve highest global recognition and awards in the field of science and tech and innovation। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे अचीव करने वाले हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रैक प्रोसेस, 4 ट्रैक प्रोसेस, जो एक यूनिक फीचर है ऑफ दिस ड्राफ्ट पॉलिसी। ये ट्रैक प्रोसेस क्लियरली बताता है कि आपने कैसे साइंस एंड टेक को डेमोक्रेटाइज करने की बात करी है, कैसे आप कैप्चर कर रहे हैं एस्पिरेशंस को ऑफ द कम्युनिटी एंड पीपल एट लार्ज, एंड हाउ यू आर गोना मेक दिस पॉलिसी, और थ्रू दिस पॉलिसी यू आर गोना डेवलप द कनेक्शंस बिटवीन वेरियस वर्टिकल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन R&D, इंडियन एकेडमिशिया, इंडियन इंडस्ट्री। इन वर्टिकल्स के बीच में आप कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हो। तो ये जो 4 ट्रैक प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट ट्रैक है टू कैप्चर द एस्पिरेशंस, जहां पे पब्लिक एक्सपर्ट कंसल्टेशंस किए जाएंगे। सेकेंड ट्रैक टॉक्स अबाउट द एक्सपर्ट और एविडेंस इन्फॉर्म्ड रिकमेंडेशंस। एविडेंस इन्फॉर्म्ड रिकमेंडेशंस ट्रैक 2 में हम अचीव करेंगे थ्रू द एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस, थीमेटिक कंसल्टेशंस डन विद द एक्सपर्ट्स। थर्ड ट्रैक में देयर विल बी collaboration and convergence between the departments, ministries and state governments. Please pay attention here. State governments को पहली बार एक एक्टिव रोल दिया गया है इन दी साइंस एंड टेक पॉलिसी। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी रोल नहीं होता था साइंस एंड टेक डेवलपमेंट में, लेकिन कोविड-19 के बाद से स्टेट्स हैव आल्सो अंडरस्टूड देयर इंपॉर्टेंस of participation in the science and tech
इनोवेशन इन आवर कंट्री। तो ट्रैक 3 में ये 3 इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंसेस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ट्रैक 4 में वी आर टॉकिंग अबाउट integrating all the inputs that we have gathered through the track 1, 2 and track 3 process। तो ये एक 4 ट्रैक कंसल्टेशन प्रोसेस है और ये 4 ट्रैक कंसल्टेशन प्रोसेस इस पॉलिसी को डायनामिक बनाता है। डायनामिक से मेरा मतलब है कि पीरियोडिक रिव्यू उसमें होगा, पीरियोडिक फीडबैक, पीरियोडिक अडेप्टेशन, पीरियोडिक इवैल्यूएशन। These are again the keywords जो आपको याद रखना है। So this policy basically is decentralized, is bottom up and also top down। Top down bottom up का ये बहुत ही beautiful you can say merger है। It cannot be said as completely bottom up, but and also it cannot be said to be completely top down like the erstwhile or the previous policies that we have seen so far। So this is beautiful merger of top down and bottom up approach जहां पे you are trying to capture the people's aspiration and you are trying to make the science, technology and innovation in your country relevant and such kind of innovation, technology and science which can be consumed by the people। तो कंजप्शन की जो प्रॉब्लम आज तक हमारे देश में थी वो अब नहीं होगी। And lastly, the most important point, you are trying to give the Indian science tech innovation a common goal, a common strategy जिससे कोहेरेंस आप अचीव कर रहे हैं और इसी के थ्रू आप कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन ऑल दी वर्टिकल्स। तो ये मेजर आइडिया है साइंस एंड टेक का जो आज तक मिसिंग था। ये सारी चीजें बेनिफिट है, ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम है और ये सारी चीजें आज तक मिसिंग थी। तो आपको अगर लिमिटेशन बताना है पुरानी पॉलिसीज में तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं, इस पॉलिसी के बेनिफिट्स बताने हैं तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो साइंस एंड टेक पॉलिसी में है, तो एक तो हो गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल तो अभी तक होता क्या है कि एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, एक्सेसिबिलिटी टू दी साइंटिफिक जर्नल्स ऑफ हाई इंपैक्ट इन नेचर, उनके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो कई ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमिशिया है, इंडस्ट्री है जो बेसिकली पे नहीं करते हैं। ऑल ओवर इंडिया एनुअल बेसिस पे द नॉर्मल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 1500 करोड़ रुपीस टू एक्सेस दीज जर्नल्स इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल जर्नल्स। तो एक सेंटरली पेमेंट बेस्ड मॉडल क्रिएट किया जाएगा एंड ऑल दीज पब्लिकेशंस वुड बी मेड एक्सेसिबल टू ऑल द वर्टिकल्स अगेन इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर, R&D, एकेडमिशिया, R&D एंड ऑल, सब इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दी वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसमें है इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो विमेन बहुत ही मिनिमल रोल प्ले कर रही है एज ऑफ नाउ R&D सेक्टर में। ओनली अराउंड 16% अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द UN, यूनाइटेड नेशंस, सिर्फ 14% है R&D सेक्टर में हमारे देश में विमेन, जबकि 40% विमेन ग्रेजुएट्स हैं इन दी STEM सेक्टर। So where are they going? Definitely you are not providing them the required bridge or the handhold support once a woman is getting graduated from the STEM sector to the R&D institution। तो बीच में एक मिसिंग लिंक है जिसको आप यहाँ पे कवर करने की बात कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी कुछ माइक्रो टारगेट्स बनाए हैं, लाइक 30% हम विमेन का रोल एंश्योर करेंगे इन डिसीजन मेकिंग रोल्स इन दी कंसल्टेटिव कमिटीज एंड इन द डिसीजन मेकिंग रोल्स। LGBTQ कमिटी को पहली बार यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और उनके लिए स्पाउसल बेनिफिट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात करी गई है। तो दीज आर सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल मूव्स included in the draft science and tech policy। ओके, कुछ और फैक्ट्स जो आपके पास होने चाहिए, लाइक इंडिया में R&D में एक्सपेंडिचर हम कितना करते हैं? 0.6% करते हैं ऑफ द GDP। ये इतना कम क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सबसे कम है इंडिया में एंड इट इज एज ऑफ नाउ ओनली अराउंड 40%, जबकि मेजर कंट्रीज में इट इज अबव 70%। ओवरऑल R&D सेक्टर में वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कितना होता है? तो इट इज अराउंड 1.5 to 3%, लेकिन इंडिया में कितना है? सिर्फ 0.6% है।
तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके पास अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नॉलेज होने चाहिए। बाकी जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ड्राफ्ट एसएनटी पॉलिसी में, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ओपन साइंस फ्रेमवर्क, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इक्विटी एंड इंक्लूजन, and apart from that developing connections between the verticals, making the science policy more applicative and accountable, it is the major key takeaways of this policy. Getting my point? Okay, आगे बढ़ते हैं to the next article of the day. तो इस आर्टिकल में डिस्कस करने का कुछ नहीं है, बस आपको अपडेट रखना है मेरे को कि जो हम एंटी कन्वर्जन लॉस की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में एंड यूपी में, हिमाचल में, राजस्थान, हरियाणा, उसके खिलाफ पिटिशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू बेसिकली टेक अप द पिटिशन एंड गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दीज लॉस। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको प्रोसीड करती है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है विच although is not on the love jihad but is definitely on the discretion of two individuals to marry each other or to live with each other। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत, खाप लीडर्स के अगेंस्ट एक जजमेंट दिया है, लेकिन इसको भी आप लव जिहाद से रिलेट कर सकते हैं जब आप लव जिहाद को क्रिटिसाइज करने की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल डिसीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हदिया से लेके पुट्टस्वामी, लता सिंह केस, सोनी जेरी केस एक्सेट्रा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का 2012 का जजमेंट है हाई कोर्ट का, कर्नाटका हाई कोर्ट का अभी 2 महीने पहले का जजमेंट है। तो ये सारे हमारे पास ऑलरेडी की पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ये आपके पास लेटेस्ट एक एग्जांपल है, पनिशिंग अ पर्सन फॉर फॉलिंग इन लव इज अ क्राइम। और अब हम इसको ट्रैक करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इसको कैसे प्रोसीड करता है और क्या जजमेंट आता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर्टिकल 21 perspective and from article 25 perspective, because the entire issue of love jihad and more importantly the issue of freedom of religion or religious conversions in India will are getting derived from these two articles only। ठीक है, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपडेट कर लो खुद को कि ये अब हमें सुप्रीम कोर्ट के एंड से ट्रैक करना है। ओके, आई एम सॉरी, ये आपके रिवीजन के लिए है। अगेन बर्ड फ्लू के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी, आल्सो कॉल्ड एज द एवियन इन्फ्लुएंजा, जो इंडिया में स्प्रेड हो रहा है अमंग 4 मेजर स्टेट्स, जहां पे हिमाचल प्रदेश में मोर देन 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स हैव डाइड ऑन द पोंग डैम, राइट। और इसके अलावा केरला में डक्स हैं, हिमाचल, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा में पोल्ट्री, क्रोज, राजस्थान में भी क्रोज, ये सब इनकी डेथ हो चुकी है। तो बेसिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इस आर्टिकल में अच्छे पॉइंट्स हैं, एक ही जगह पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे कि ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है या नहीं। सो द आंसर इज नो इफ यू कुक and eat it, because through the heat this virus dies, this is according to the WHO। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो आप रीड कर सकते हैं। एक बार क्विक रीड करेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा। all those points that we basically discussed under the avian influenza or the H5N1 N7 N9 influenza, इसके मल्टीपल म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, अनुभव मंटपा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए याद रखिए अबाउट द बसवा और बसवेश्वरा। तो he was basically a Lingayat saint, a 12th century social reformer। कुछ पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, आप जॉट डाउन करते जाओ, प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी स्टेटमेंट आता है तो यू इजीली विल बी एबल टू गेस द राइट वन एंड एलिमिनेट द रॉन्ग वन। तो बसवा और बसवेश्वरा was a 12th century social reformer, a Lingayat saint, and he belonged or he was the contemporary of the Chalukyan dynasty or the Kalachuri dynasty। किंग बिजाला II के टाइम पे बसवा और बसेश्वरा एग्जिस्ट करते थे एंड इनके कुछ फिलोसफीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लाइक ही वाज अ बिलीवर ऑफ नॉन ड्यूलिज्म, जिसको देवता भी बोलते हैं, अदेवता एंड देवता are the two Vedanta philosophies parts। तो non dualism is the devta part। तो
तो he believed in non-dualism, that is atma and body are two distinct entities, they are not an integrated entity, ये एक ही नहीं है, अलग अलग होते हैं. And so his views were very much closer to the Vedanta philosophy or Vedanta school of philosophy. इसके रिस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वचानास. What are vachanas? Vachanas are the poetries of Basava which were meant for social awareness. तो वो पोएट्रीज जो बसावा ने क्रिएट करी थी फॉर द सोशल अवेयरनेस वर बेसिकली कॉल्ड एज वचानास. Okay, he was a person who rejected gender, caste, religious discrimination. So he was against gender discrimination, he was against caste discrimination, he was against rituals and superstitions. तो इन सबके ये अगेंस्ट थे. इन्होंने अनुभव मंटपा का एस्टैब्लिशमेंट किया था. इट वाज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट. इस पार्लियामेंट में ऑल्सो कॉल्ड एज द हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सीलेंस. हियर ऑल वर वेलकम्ड, ऑल मेन belonging from whichever caste, religion, region, all were welcomed, and even women from all the caste, religion, that is irrespective of the background, all men and women were welcomed under in the Anubhav Mantapa, also called as the hall of spiritual excellence or the first parliament of our country. दोनों तरीके से इसको आप पुट अप कर सकते हैं. Basava popularized two principles. First is Kaya Kave Kailasa. Let me write it. Kaya Kave Kailasa. It stands for work is worship. And second is Dashoa. That means give back to society. तो ये दो principles के ये ardent follower थे and he propagated also these two principles. He came up with a new devotional movement called as Veera Sheva, and all those who basically followed this movement were called as Veera Shaivites. तो ये लिंगायत सेंट है, he was a Shaivite and he therefore came up with the new devotional movement called as Veera Sheva, that is ardent worshippers of Lord Shiva. इन्होंने शरणा मूवमेंट भी स्टार्ट करी थी. तो शरणा मूवमेंट क्या है? शरणा मूवमेंट इज वेलकमिंग ऑल मेन एंड वीमेन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. दैट इज द शरणा मूवमेंट. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि शरणा मूवमेंट पूछा है तो क्या है. अनुभवा मंतपा जो है उसमें शरणा मूवमेंट ही है बेसिकली. फाइन. एंड लास्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लंदन में alongside the river Thames एक स्टैचू अनवील किया in 2015 ऑफ बसवेश्वरा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो आपको पता होने चाहिए यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बूस्टिंग इंडिया विद मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. तो ये आर्टिकल को आप एक क्विक रीड दे सकते हैं. इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि it is not India which basically is providing the benefits to France, but France instead is allowing India to engage with multiple other maritime related institutions and organizations. तो फ्रांस हमें कैसे हेल्प कर रहा है इंडियन ओशियन में एंगेज करने में विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल. तो जो हमने डेवलप करा है IFCIOR, also called as IMAC and the National Maritime Awareness Center and so on in Gurugram, इसके थ्रू हम ईस्टर्न इंडियन ओशियन को बेसिकली मॉनिटर करते हैं, सर्वेलेंस एक्टिविटीज करते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट द वेस्टर्न इंडियन ओशियन? तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फ्रांस ने हमको हेल्प करा टू ज्वाइन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, to join the Regional Maritime Information Infusion Center located in Madagascar. Madagascar में Regional
मैरीटाइम IFC है जो फ्रांस के कारण इंडिया ज्वाइन कर पाया। इसमें एज अ ऑब्जर्वर, तो इंडिया गॉट एन ऑब्जर्वर स्टेटस in the RMIFC. Also, India has now become a member और has posted an officer, लाइजनिंग ऑफिसर्स होते हैं जैसे इंडिया के IFC IOR में पोस्टेड है, उसी तरीके से इंडिया ने भी अपना एक लाइजनिंग ऑफिसर पोस्ट किया है इन द यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस in the Strait of Hormuz, which is located in the Abu Dhabi. So it stands for EMASOH. तो ये कुछ मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक क्विक रीड दे सकते हैं इसको, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करिए कि कैसे इंडिया लीडरशिप का रोल अज्यूम कर रहा है एंड सो ऑन, हाउ वी आर कन्वर्जिंग आर leadership role with that of our key policies like Sagar, our role of security provider, preferred partner and so on. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फ्रांस इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रांस के रिस्पेक्ट में एडिशनल पॉइंट्स आपको बताने थे कि फ्रांस हमें कोल्ड वॉर के टाइम से हेल्प करता हुआ आया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल डायनामिक्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। सो इसीलिए हम उसको एक स्पेशल पार्टनर बोलते हैं अपना। एंड till now France is very much helpful for us as it is allowing us to get the observer status in the RMIFC kind of maritime stations and so on. ठीक है, ओके। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का एक्ट पास हुआ था 2016 में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आज भी नहीं हो पा रहा है एंड उसका एग्जांपल है यूपीएससी बॉडी इटसेल्फ। तो ये आर्टिकल आपको कोई यूपीएससी की न्यूज देने के लिए मैंने सिलेक्ट नहीं करा है, सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट है। मैं यहाँ पे ये एक्ट को डिस्कस नहीं करूंगा 2016 के एक्ट को, मैं सिर्फ आपको एक क्रिटिसिज्म दूंगा कि इस एक्ट में एक मेजर पॉइंट था दैट 4% रिजर्वेशन वुड बी एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड टू द पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मैंडेटरी 4% रिजर्वेशन जो यूपीएससी एज अ रिक्रूटमेंट सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी ने अडेयर नहीं करा एंड उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है एंड दिल्ली हाईकोर्ट ने उससे क्वेश्चनिंग भी करी है यूपीएससी से। तो ये एक फैक्ट आप बता सकते हैं कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेडिकेटेड एक्ट और टूल पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। तो उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की है। ठीक है, हाउ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोटास वर्क। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोटास बेसिकली होते क्या है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन दी सौरभ यादव केस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़े से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड करा फाइनली। देखिए ये इशू बेसिकली है क्या, दिस इशू इज गिविंग यू द क्लैरिटी कि एक होती है रिजर्व्ड क्लास और एक होती है अनरिजर्व्ड क्लास। तो यूजुअली ऐसा परसेप्शन होता है नॉट ओनली ऑफ सिटीजन्स बट ऑल्सो ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करी जा रही है कि अगर सपोज करिए कि 50% रिजर्वेशन है और 50% अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, तो इट इज अज्यूम्ड दैट दीज 50% अनरिजर्व्ड सीट्स आर अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर द जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पे क्लैरिटी की जरूरत थी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करी बाय डिफाइनिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोटास एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सेम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो 50% अनरिजर्व्ड है, दिस डज नॉट मीन दैट जनरल कैटेगरी हैज गॉट दिस एज अ रिजर्वेशन। इफ मेरिट हैज टू प्रिवेल, अगर कोई एससी कैंडिडेट है, सपोज करिए एससी कैंडिडेट है, उसके 400 मार्क्स आते हैं एक एग्जामिनेशन में और एक जनरल कैटेगरी है का एक कैंडिडेट है जिसके 380 मार्क्स आते हैं एक एग्जामिनेशन में, क्वालिफाइंग मार्क्स उस एग्जामिनेशन के 350 हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये एससी कैंडिडेट विल क्वालिफाई अंडर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी और एससी कैटेगरी में वो क्वालिफाई नहीं करेगा बिकॉज हियर वी विल बी लुकिंग एट द मेरिट ऑफ दिस कैंडिडेट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो ये हर जगह अप्लाई होता है, ये इनफैक्ट
आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन में अप्लाई होता है, और ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि इफ अ पर्सन इन द एससी कैटेगरी सिक्योर्स अ हायर स्कोर देन द कट ऑफ for the general category, then the person, that is the SC person, will be counted as having qualified under the general category but not under the SC category. तो इसके रिस्पेक्ट में कंफ्यूजन प्रिवेल कर रहा था, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोटा का और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो गए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोटा क्या होता है ये समझिए पहले। हॉरिजॉन्टल कोटा, वर्टिकल कोटा होता है एससी का कोटा, एसटीज का कोटा एंड ओबीसीज का कोटा। So these are the verticals in the reservation policy. Now what are the horizontals? तो horizontal में आता है women, person with disabilities and so on. Getting my point? तो women SC भी हो सकती है, women ST भी हो सकती है, women OBC भी हो सकती है, इसीलिए उसको बोला गया horizontal reservation. ऐसे ही persons with disabilities हैं, वो भी SC हो सकते हैं, ST हो सकते हैं, and they can be OBCs, तो they again become the part of horizontal reservation. इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस आया उत्तर प्रदेश में, दिस इज द केस यहाँ पे मेंशन्ड है। दो इंडिविजुअल थी, विमेन थी, दोनों के सर्टेन मार्क्स आए और उन दोनों के मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा थे, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड, उन्हें रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल नहीं माना गया बिकॉज जो कट ऑफ गया उसमें जनरल कैटेगरी के मार्क्स कम थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जनरल कैटेगरी के मार्क्स कम हैं और अगर उस विमेन ने ज्यादा मार्क्स अटेन करे हैं देन दी जनरल कैटेगरी, बट अपनी कैटेगरी का क्वालिफाई नहीं करा है, देन ऑल्सो शी इज एलिजिबल फॉर द क्वालिफिकेशन और रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के एप्लीकेशन रिजर्वेशन में थोड़ी सी रैशनलाइज कर दिए, डिफाइन कर दिए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वो बात बोल चुका है जो मैंने आपको बताई कि अगर कोई एससी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेके आता है या इक्विवेलेंट मार्क्स लेके आता है तो वो एससी कैटेगरी में नहीं सिलेक्ट होगा, वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होगा, और एससी कोटे में सीट्स देन विल बी इंक्रीज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? 100 सीट्स हैं एससी कैटेगरी में, इसमें से 2 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के इक्विवेलेंट आए, जनरल कैटेगरी से ज्यादा आए, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, एंड हियर 2 more people can then be accommodated। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई विमेन एससी है, अगर कोई विमेन एसटी है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बात बोली है कि मेरिट विल बी अकॉर्डेड, मेरिट विल बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो ज्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है, यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, आपको समझा देता हूं। बाकी ये पैराग्राफ है, यहाँ पे बहुत इजी है, एक स्टोरी है बस 2 लड़कियों की, उनके मार्क्स आए थे। होता है ना जैसे राजस्थान का पीएससी होता है, राजस्थान के पीएससी में ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा जाता है जनरल कैटेगरी से, तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई उत्तर प्रदेश में, तो उसमें विमेन को बोला गया कि आप क्वालिफाइड हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है वैसे। ओके, कल हमने डिस्कस करा था अबाउट दी अल ओला डिक्लेरेशन। उसको अगर आपको इन डेप्थ रीड करना है, इन डिटेल रीड करना है, तो इस आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू बोथ दी ऑप्शंस। अगर आपके पास टाइम है, आपको जानना है कि 2017 से कतर और यूएई सऊदी अरेबिया के ब्लॉक में क्या डिफरेंसेस आए, क्या हुआ उसके बाद एंड सो ऑन, ऑल्दो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग, इफ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड दिस आर्टिकल, स्पेशली द हेडेड पार्ट, टू बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द वेस्ट एशियन रीजन। तो कतर, यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बीच के डिस्प्यूट्स यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल उला डिक्लेरेशन, ये नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं हो रहा है आर्टिकल्स में, इसको प्लीज यूज करना एग्जामिनेशन में, अल उला डिक्लेरेशन, ये बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देगा ऑन दी इवेल्युएटर। इस आर्टिकल में भी अल उला डिक्लेरेशन का मेंशन नहीं है। तो 2017 से ये दोनों कंट्रीज और एक ब्लॉक और कतर के बीच में डिफरेंसेस
स्टार्ट हुए इमर्ज होना, because the allegations were leveled against the Qatar that it is fueling terrorism and is being more accommodative with the Iran. कतर बेसिकली गैस फील्ड शेयर करता है विद ईरान, तो वो जो शेयरिंग है गैस फील्ड, इट इज अ मेजर गैस एक्सप्लोरेशन कंट्री। इंडिया भी इनफैक्ट जो अपनी 50% गैस मंगाता है उसमें से मेजर शेयर कतर से ही आता है इंडिया में भी। नेचुरल गैस की बात कर रहा हूं। तो क्योंकि कुछ गैस फील्ड्स कॉमनली शेयर होती हैं बिटवीन कतर एंड ईरान, तो सऊदी अरेबिया एंड यूएई हमेशा एप्रीहेंसिव रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कतर एंड ईरान रिलेशंस। और कतर बहुत ही जल्दी एक पुअर नेशन से वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वेल्दीएस्ट नेशन बना ऑफ द एंटायर रीजन। तो उसके कारण भी थोड़े से फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो ब्लॉक्स में एक्रीमनी प्ले करते हैं, इमर्ज होती हैं जिनके कारण। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे, लेकिन ईरान को अगर कलेक्टिवली थ्रेटन करना है, ईरान को कलेक्टिवली आइसोलेट करना है, तो कतर को इंक्लूड करना जरूरी था वापस अपने ब्लॉक में। और इसके लिए अल उला डिक्लेरेशन के थ्रू डिप्लोमेटिक रिलेशंस रीइंस्टेट कर दिए गए बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड यूएई ब्लॉक एंड द कतर, एंड द मेजर रोल हियर वाज प्लेड बाय कुवैत, द रोल ऑफ मीडिएशन। तो ये सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमने आपके साथ डिस्कस करने थे। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल कॉल इट अ डे। अच्छा, ये जो एवियन इन्फेक्शन वाला मैंने आर्टिकल दिया है ना, देखिए इसमें भी एक पॉइंट लिखा हुआ जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि इंडिया में जो ये इन्फेक्शन फैला है, पहली बार तो ये 2006 में फैला था, और इस बार जो फैला है दैट हैज बीन मेजरली बिकॉज ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। So through the droppings of migratory birds, we are as of now witnessing the bird flu cases in our country. होता क्या है, कुछ बर्ड्स में सिकनेस डेवलप नहीं होती है बिकॉज ऑफ द एवियन फ्लू और H5N1 और H5N7N9 infection, and still they have that virus in the body. तो जब वो फ्लाई करती हैं तो इन देयर ड्रॉपिंग्स द इन्फेक्शन इज स्टिल देयर, और उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है देन टू दी अदर बर्ड्स, अदर एनिमल्स एंड इवन टू दी मैमल्स। तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कल। तो ये इस आर्टिकल में मेंशन्ड है यहाँ पे, मेनली फ्रॉम दी माइग्रेटरी बर्ड्स। Okay, fine then. Let us call it a day. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.